Start recording. Yes. So we are just repeating this acid and basic concept, acidic strength or acidic character or acidic order. Okay, many times such question will come. Arrange the following compounds in acid, proper acidic strength and like that. So anything is acid means what? There are different definitions for acid and base. So one of the definition is anything which provide H plus to the water. Matlab if you are having water here and any compound, AH stands for any compound, that compound can give the H plus. And water, what will happen? So water will take the hydrogen from it. Screen is hanged. Is it okay going on or not? Sir, it is correct. Going on. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so what will happen in this case? It will provide H plus. H plus means mechanism. By writing the mechanism, how we are writing here, it will take that H plus from here and there will be a negative charge on this A minus. So this is how we are writing the mechanism. So what will happen here? A will have the negative charge plus H2O will convert into H3O positive. H2O will convert into H3O positive. So something is it is going to be, since AH is providing H plus, it is called as acid, and H2O is accepting the hydrogen, so it is called as base. Okay, so if you are talking about the backward reaction, in a backward reaction, A minus will take the H plus from the H3O plus. So A minus will behave as a base and H3O plus is providing H plus to the A minus. So in a backward reaction, H3O plus is called as a acid. Okay. So it is called an acid and base. Now here, if you are talking about this side acid and this side base, that is, this pair is called as conjugate acid base pair. This is called as conjugate acid base pair. Okay, this is one conjugate acid base pair, means if this is AH is the acid, its conjugate base is A minus. If H2O is a base, another acid base pair is here. Okay, this is the another acid base pair, conjugate acid base pair, where H2O is a base and H3O plus is a acid. You can see, नाही लिहायचं काय गरज नाही, लिहिलं नाही तरी चालेल. तुम्ही पण नाही लिहिलं तरी चालेल किंवा लक्ष द्या फक्त. व्हिडिओज मध्ये तुम्हाला भेटून जाईल, अजून मागच्या व्हिडिओ जरी पाहिलं तरी एकदा मी रिपीट करतोय. सो यू कॅन गो थ्रू दोज व्हिडिओज. इथे मी थोडे शॉर्ट मध्ये सांगतोय, महत्वाचे कन्सेप्ट जिथे समजून सांगायचे ते सांगतोय. बाकी एक्झाम्पल्स आणि बाकीचे जे कन्सेप्ट आहेत ते एकदा पूर्ण व्हिडिओज बघा. आणि पुन्हा जर या वीक मध्ये मी आज मी हे रिपीट करणार आहे, जे आपण घेतलेलं आहे ऍसिड आणि बेसचे महत्वाचे पॉइंट्स मी रिपीट करणार आहे आणि महत्वाचे एक्झाम्पल्स, महत्वाचे कन्सेप्ट मी रिपीट करणार आहे. Next, from tomorrow onwards, we'll just carry on with our regular classes. Okay, in between, whatever doubts if you are having, and if you think sir doubt clear nahi ho rahe by looking at the video, watching the videos, then you just tell me. We'll have one particular session for examples like that. ठीक है? So you just go through all the examples, previous videos देख लो आप फिर से, and still if you are having doubts, then we'll check. तो आजच्या क्लासमध्ये मी ऍसिडिक स्ट्रेंथचे महत्वाचे पॉइंट्स घेणार आहेत. आजच्या क्लासवरून तुम्हाला येऊन जाईल, त्याचे कन्सेप्ट पण येऊन जाईल, क्लिअर आयडिया पण येऊन जाईल आणि एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करता येतील तुम्हाला. ओके, सो सर हा बोला, बोल. हॅलो, येतोय का आवाज? सर ती रिएक्शन एकदा समजवा. Suppose what is that? Something is acid means anything which can provide H plus, that is called as acid. Anything which can provide H plus is called as, anything which provide H plus, anything which provide H plus, which can give H plus. Okay, it is a source of H plus, called as acid. Okay, there are different definitions for the acid, different theories for acid base. Lowry's acid base theory, Lowry Bronsted acid base theory, Lewis acid base theory.
like that. This is the Laurie Bronsted, I think, H plus donor. Okay, so anything which can provide H plus. Okay, आवाज येतोय का आता? Hello, are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. H plus is called as acid, and anything which accept H plus called as base. Okay, so anything which can provide H plus, donate H plus is called as acid. Anything which accept H plus, we can call it as a base. So again, I will be repeating this above reaction. If something is there, A and H, when it is treated with water, okay, water is taken as a reference. What will happen? This is the acid, so it can give the H plus. Can I write this way? Can I write in this way? So that A will convert into A minus. Is it a correct way of writing mechanism? And H2O will convert into H3O plus, because H is getting one more, H2O is getting one more hydrogen. Is that a correct way? No. If you are writing this way, it is not a correct way, because I told you this, these arrows are giving the, these arrows are showing the flow of the electron. मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जाते हैं, that flow of electron is given. मतलब ये लोन पेयर H प्लस के ऊपर अटैक करता है और A के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, so A will have the negative charge and H2O will convert into H3O plus. Okay, in this reaction AH, this complete compound is providing H plus, वो H plus दे रहा है आपको, so it will converted into H3O plus और खुद क्या हो जाता है A minus में convert. Anything which provide H plus is called as acid and anything which accept H plus is called as base. If you are talking about the reversible reaction, this is not only a forward reaction, this reaction can be a reversible reaction. ये आगे भी जा सकती है, backward भी आ सकती है. If you are talking about backward reaction, in a backward reaction मतलब A minus will give you AH और H3O plus will give you H2O. A minus क्या करेगा, H3O से H plus लेगा. A minus will take the H plus from the H3O. तो A minus is taking the H plus, therefore it is called as base. And H3O plus is giving the H plus, it is called as acid. It is called as acid. So it is an acid base. But if you are making a pair of one side acid and another side base, तो आपको एक देखेगा कि इनमें डिफरेंस जो होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, A और H में खाली हाइड्रोजन का. इस साइड में एसिड है, इस साइड का बेस, और इस साइड का अगर एसिड हम लेते हैं, इस साइड का हम एसिड लेते हैं, तो यहाँ पे what will happen, which one is acting as a base, which one is acting as a acid. Okay, so H2O is a base or H3O plus is a acid. Clear? तो ये जो बेस पेयर होते हैं, एसिड और बेस, इन दोनों के अगर हम पेयर लगाते हैं, that is called as conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair. This is also called as conjugate acid base pair. ठीक है, ये है आपके रिएक्शन. ठीक है, तो anything which can use H plus is called as acid, anything which accept H plus is called as base. Okay, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिया है. आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर हुआ है क्या? इक्विलिब्रियम चैप्टर चालू आहे सर. सर चालू आहे. या रिएक्शन साठी के इक्विलिब्रियम चे इक्वेशन जर लिहायचं असेल तर व्हॉट शुड आय राईट? K equilibrium. What is K equilibrium now? Sir, product of reactants upon product of The ratio of product H product upon reactant. product upon concentration of the products, मतलब A plus and H3O plus का concentration रहेगा divided by AH का concentration Of reactant. and H2O. H2O. Yes, and H2O. we are taking the constant to K equilibrium into H2O will become the another constant. बराबर है.
H2O will become the another. This is again I will consider it as a constant. वहां पे डिटेल में है, यहाँ पे मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ. तो ये है इक्विलिब्रियम. इसको बोलते हैं हम Ka. Ka it is denoted by Ka. So Ka होता है and K is equal to now concentration of same ही है A minus concentration of H3O plus divided by concentration of H. Okay. Ka is nothing but acidic strength, या फिर हम बोलते हैं इसको acidic strength के ऑर्डर. और यहाँ से एक और चीज निकलती है pKa. pKa वैल्यू क्या होती है? दैट इज नथिंग बट निगेटिव लॉग ऑफ Ka. pKa क्या होती है? निगेटिव लॉग ऑफ Ka. हो जाएगा. हुआ है ये सारी चीजें आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इतना तो हुआ होगा शायद. हुआ है या सर के इक्विलिब्रियम पर तक ही हुआ है. ठीक है. हाँ सर. सर वो तो पीके वो नहीं हुआ. so acidic strength कोई भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ इफ यू आर कंपेयरिंग विद द समथिंग एल्स, तो इसके लिए कुछ स्केल लगेगी, यानी समथिंग इज मोर एसिडिक, समथिंग इज लेस एसिडिक. तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज द K is the measure of acidic strength is directly proportional to Ka. Acidic strength is directly proportional to value of Ka. जितना Ka ज्यादा होगा, मतलब Ka कब होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर वाले टर्म का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. ऊपर वाला टर्म मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब रिएक्शन क्या हो रही है आपकी? फॉरवर्ड हो रही है. ओके. तो जितना आपका Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ठीक है. सो दैट इज द वैल्यू, सो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ Ka. K क्या डिनोट करता है आपको? एसिडिक स्ट्रेंथ. जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना ही वो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है और होता है. और pK वैल्यू क्या होता है? दैट इज अ निगेटिव लॉग ऑफ K. निगेटिव लॉग ऑफ K. अब जनरली ये वैल्यूज कैसे आती है लॉग ऑफ K की? सॉरी, K की वैल्यू समथिंग होगा 9 into 10 to the power minus 3 और 4.2 into 10 to the power minus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा कुछ तो भी होगा. तो जनरली इस टाइप में वैल्यूज होती है. और pK की वैल्यूज होती है 3, 9, 3, 4, 8, 5 लाइक दैट. अब यूज करने में कौन ज्यादा आसानी है? देखो, K की वैल्यू एज यूजफुल है या फिर pKa की वैल्यू सुटेबल कौन सी है यूज करने के लिए? तो pKa की वैल्यू. ओके. तो ये जो K होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और K की डेफिनेशन क्या है? निगेटिव लॉग ऑफ K. pKa की डेफिनेशन क्या है? निगेटिव लॉग ऑफ K. तो ये जो K वैल्यू होगा, फिर हम क्या बोलेंगे? ये K और pK में क्या रिलेशन होना चाहिए? डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए या इनवर्स रिलेशन होना चाहिए? जितनी ज्यादा इनवर्स. लॉग ऑफ K है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव. सो ये हो जाएगी pKa निगेटिव हो जाएगी. तो K, सो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK. तो बहुत बार ये चीजें आप ध्यान में रखोगे. एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी पूछेंगे, आइदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो K पूछेंगे, नहीं तो pK पूछेंगे. ठीक है. और एक बात, K की वैल्यू जो होती है, इक्वेशन की तरफ देखो, K की वैल्यू जो होती है इस डायरेक्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड है ये तो छोड़ दो आप. अब ये वाली चीज है, is directly or inversely proportional to A minus concentration. K की वैल्यू डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A minus concentration. सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. It is directly proportional to A minus concentration. तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये A minus concentration मतलब is directly proportional to stability of A minus. Stability of A minus. A minus जितना ज्यादा स्टेबल होगा, A minus जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही K की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ओके. तो इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द A minus. और एक चीज आती है. हाँ बोल. सर पण H3O प्लस तर ऍसिड आहे आणि A मायनस बेस आहे. मग सर जर म्हणजे A मायनस का कन्सिडर केलं स्टॅबिलिटीसाठी? स्टॅबिलिटीसाठी H3O ते आता H3O इज अ कॉन्स्टंट. आता A minus इज एनीथिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. H3O is a something we have defined. Okay. A minus can be OH minus. A minus can be NH2 minus. A minus can be OCH3 minus. A minus can be OCOCH3 minus. Okay.
ए माइनस को डिफाइन किया है क्या तूने? इसका तो डिफिनेशन हो गया है ना, इसका कुछ पर्टिकुलर के वैल्यू होगा, पी के वैल्यू होगा, वो छोड़ दो हम। ओके, इट इज ए कांस्टेंट, हो गया। बट ए माइनस कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कहीं कुछ भी हो सकता है ए माइनस की जगह पे। ओके, एंड व्हाई आई हैव कंसिडर्ड ए माइनस ओनली। अब देखो फिर से रिएक्शन के ऊपर, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चाहिए मुझे, अब ए एच माइनस ए एच एसिड बिहेव करने वाला है, एसिड बिहेव करने वाला है मतलब H प्लस देगा। अब H प्लस देगा मतलब ये अगर स्टेबल नहीं हुआ, ओके, ये अनस्टेबल है, ए माइनस खुद ही अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी क्या? नहीं होगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी तो ये ज्यादा बैकवर्ड एज की तरफ भागेगी, ये रिएक्शन मतलब बैकवर्ड रहेगी। आपको ये फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए ए माइनस का स्टेबल होना जरूरी है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ये ए माइनस खुद ही अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी, फिर से ये बैकवर्ड हो जाएगी। तो ये रिएक्शन भी डिसाइड करती है वेदर यू आर गोइंग टू बी अ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? सर सर H3O प्लस कन्सिडर नाही केलं कारण ते कॉन्स्टंट आहे म्हणून. त्याची एक व्हॅल्यू येईल ना पर्टिक्युलर. ओके, आता ए माइनस वी हैव नॉट डिफाइंड इट बिकॉज ए माइनस कैन बी एनीथिंग। सो ये इसी के ऊपर तो पूरा स्टोरी है ना, ये जो पूरा टॉपिक हम देख रहे हैं ये माइनस की स्टेबिलिटी बताएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर ए एच की एसिडिक स्ट्रेंथ ओके विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या रहेगी? ओके, तो ए एच की स्ट्रेंथ ए कैन बी एनीथिंग। अब ए मैं यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, अभी आगे जो वाले एग्जाम्पल में ए ही खाली हम चेंज करने वाले हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स में ए एच। अब इन दोनों में वाटर लिया मैंने और अल्कोहल लिया और RCOH, कौन ज्यादा एसिडिक है ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ए माइनस की स्टेबिलिटी के ऊपर, चलो वो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको समझ में। तो ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ द ए माइनस, ओके, के सब कुछ स्टोरी डिपेंड है स्टेबिलिटी ऑफ द ए माइनस। फिर स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस किस चीज के ऊपर डिपेंड है बोलो? स्टेबिलिटी ऑफ द ए माइनस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड है? नेचर ऑफ द एटम, नेचर ऑफ एटम मतलब ये एटम कैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम नेचर ऑफ एटम में, क्या बोल सकते हैं हम इसको? चलो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ द ए माइनस, stability of A minus. Stability of A minus directly proportional. So depends on factors affecting, नहीं तो इसको ऐसा कर देते हैं, factors affecting stability of A minus. Factors affecting stability of A minus. ओके, कौन से फैक्टर पे ए माइनस की स्टेबिलिटी डिपेंड करते हैं? ओके, तो ए माइनस स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ द एटम, फर्स्ट नेचर ऑफ एटम, नेचर ऑफ एटम, नेचर ऑफ एटम में दो चीजें होती है, फर्स्ट ए पार्ट होता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर और बी पार्ट होता है इसमें साइज वाला फैक्टर। ओके, पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर की बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा या लेस स्टेबल रहेगा? नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, इतना ज्यादा। और ये जो फैक्टर, हाँ ये जो फैक्टर वर्क करता है, ये फैक्टर वर्क करता है, माझ्या निदर्शनास आलं की माझा एक्सपिरियन्स जास्त असल्यामुळे लोक मला घेत नाहीत, असं पण झालं. अरे बाबा कौन है रे ये? आणि एक्सपिरियन्स जास्त म्हणलं की पगार जास्त. हाँ, सो ये जो फैक्टर होता है दैट डिपेंड्स ऑन दी डिपेंड्स अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। ओके, डाउन द ग्रुप क्या होता है वो देखेंगे अलग से। तो अक्रॉस द पीरियड मतलब मेरे पास है CH3 माइनस, मेरे पास है BCN NH2 माइनस, NH2 माइनस, then I am having NH2 minus, then क्या है OH minus, then F minus. Okay, what will be the stability order? What will be the stability order? ये वाला फैक्टर पे ध्यान दो। What will be the stability order? Yes. F minus. F minus. Stable, then OH minus, then CH3 minus, then NH2 minus. Okay, ये वाला। तो नेचर ऑफ एटम में
पहले आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखोगे, अलग अलग एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो, और दूसरा बी वाला फैक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप में प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। ओके, तो यहाँ पे होगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। इनमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, या फिर आपका गेस क्या है? F माइनस होना चाहिए या I माइनस होना चाहिए? I minus, sir. I minus. I minus. I minus. What is the reason? क्योंकि यहाँ पे तो F माइनस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Size. साइज, तो डाउन द ग्रुप जब भी हम देखते हैं, डाउन द ग्रुप हम कौन सा फैक्टर देखते हैं? डाउन द ग्रुप वाला जो फैक्टर होता है, साइज का फैक्टर प्रोमिनेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे साइज का फैक्टर जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है। नेगेटिव चार्ज ऑन ए बिगर एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन ए बिगर एटम, यहाँ पे जो होता है नेगेटिव चार्ज स्टेबिलाईज ज्यादा होता है, तो ज्यादा स्टेबिलाईज कर देता है। तो डाउन द ग्रुप जो होता है साइज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर साइज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव ऑन मोर साइज और बिगर एटम, मोर साइज्ड एटम इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, ये जो फैक्टर होता है हम डाउन द ग्रुप देखते हैं। अक्रॉस द पीरियड हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखेंगे। कंपेयर किसमें करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ये हुआ पहला फैक्टर, नेचर ऑफ द एटम। चलो, नेचर ऑफ एटम सेम है। ओके, नेचर ऑफ एटम मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेचर ऑफ एटम, एटम इफ एटम इज सेम। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एटम इज सेम, एटम इज सेम, तो आप दूसरे फैक्टर देखोगे इसमें। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है या डिस्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबलाइजेस और डिस्टेबलाइजेस, हमें नेगेटिव चार्ज के बारे में देखना है। क्या करता है? डिस्टेबलाइजेस, स्टेबलाइजेस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, सर और इलेक्ट्रॉन फिर स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या चाहिए? स्टेबलाइजेस नेगेटिव चार्ज। ओके, तो किसी के पास पहले से नेगेटिव चार्ज होगा और कोई ग्रुप होगा जो डोनेटिंग एक्ट करेगा और दूसरा ग्रुप होगा जो कि विड्रॉइंग एक्ट करेगा। अब डोनेटिंग है मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी चार्ज होता है, तो चार्ज मतलब क्या है? अनस्टेबल है। और कोई आके अपना डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द ए माइनस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, कोई डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, कोई भी एटम O माइनस मैंने ले लिया, डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? डोनेट इलेक्ट्रॉन देगा। पहले से ये परेशान आदमी बैठा है और ये इसकी परेशानी बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या है? इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज में उल्टा काम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज को ये अपने ऊपर लेते हैं, मतलब ये नेगेटिव चार्ज, इसकी परेशानी ये खुद के ऊपर भी लेते हैं, तो इसको थोड़ा हल्का हो जाता है ये। तो ये हो जाता है हमारा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। तो दोनों ध्यान में रखो, मतलब हमें क्या चाहिए? तो कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कुछ आते हैं तो देखेंगे हम। तो यहाँ पे रेजोनेंस अगर आता है, वो वाली चीजें सब कुछ आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको कि इन सारी चीजों के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ये बढ़ती है। हाँ, बोल। सर जर म्हणजे जर ॲटम सेम नसेल तर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आणि विड्रॉइंग ग्रुपचा फरक पडतो? नाही, त्यात बघायचं ना, ऍटम सेम नसेल तर पहिल्यांदा वरच्या फॅक्टर मध्ये जायचं। मग नेचर ऑफ ऍटम जर सेम नसेल तर पहिला फॅक्टर आपण बघायचा, ते दोन ऍटम जे येतात आहेत ते कुठे येतात आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी किंवा साईजचा फॅक्टर मध्ये येतात आहेत का. मग ते जेव्हा येतील तिथे इथेच डिस्टिंग्विश होऊन जाईल मग तुमचं. जेव्हा ऍटम सेम नसतील ना, तर या वरच्या दोन केस मध्ये डिस्टिंग्विश होईल.
मॅक्झिमम 90% तर- प्रॅक्टिस मध्ये इथेच होईल ते. फार देअर टू देअर म्हणजे- मध्ये मग तुम्हाला त्यात जावं लागेल. ओके, आहेत तसे पण सर एक्झाम. म्हणजे सेकंड फॅक्टरची गरज नाही पडत त्याच्यात. नाही पडणार तुम्हाला, पहिल्यांदा हे दोघांमध्येच डिसाइड होऊन जाईल. ठीक आहे. तर मग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप म्हणजे काय, तर यात इथे आपले प्लस आय ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो कि प्लस एम इफेक्ट देंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस आई ग्रुप, माइनस एम ग्रुप और माइनस HCB ग्रुप होते हैं. ओके, तो जनरली हम यूज करते हैं माइनस आई और माइनस एम वाले ग्रुप्स को. ठीक है, चलो हम देखते हैं. अभी हम डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. तो एसिडिक स्टेट ऑर्डर जो हमने ऊपर लिखा है ना, सो क्वेश्चन आता है ऐसे. सो व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. एसिडिक स्ट्रेंथ और K का ऑर्डर हो सकता है और pK का ऑर्डर हो सकता है. ओके, व्हेनेवर सच क्वेश्चन इज देयर, नो हाउ टू सॉल्व, बहुत सारे n नंबर ऑफ एग्जांपल इससे बन सकते हैं, बट सॉल्व करने का जो तरीका है दैट इज द सेम इन ऑल द केसेस. सो पहले आप सॉल्व करने का तरीका देख लो, हाउ टू सॉल्व. फॉर एग्जांपल पहला एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है, वाटर दिया है आपको, मीथेन दिया है CH4, अमोनिया दिया है NH3 और दिया है आपको HF. ओके, तो A, B, C और D ये आपको दिया है. फिर आपको क्वेश्चन पूछा है कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, K ऑर्डर बताओ, नहीं तो PK. इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ K ऑर्डर नहीं तो PK ऑर्डर. बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हाट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि यहाँ से एसिड बिहेव करता है, whatever the given compound is, it is behaving as a acid. इसका मतलब क्या है कि इसने H+ देने को ना, H+ देने के बाद इसके पास बचेगा क्या, H2O के पास अगर H+ दे दिया इसने तो क्या बचेगा यहाँ पे, OH माइनस. H4 ने H+ दिया तो क्या बचेगा, CH3 माइनस. NH2 ने H+ लूज किया तो क्या बचेगा, NH2 माइनस. HF ने H+ यूज किया, लूज किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, F माइनस. क्लियर. तो ये जो सब कुछ निकला है नीचे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस. देखो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, F माइनस. ये अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, NH2 माइनस. इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये. हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ दी A माइनस. व्हाट इज द स्टेबिलिटी, आप पहले एक काम करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बोलोगे, नहीं तो स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस बोलोगे, दोनों वन एंड दी सेम थिंग है. ठीक है. व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दिस केस, ये ऊपर ही डिस्कस किया है हमने. व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, F minus is stable. F minus is most stable, then F minus. NH2. NH2 minus C, then OH. अच्छा F minus के बाद NH2 आता है क्या, नहीं OH. तर OH माइनस आना होगा. माइनस मतलब A आएगा, then C. C. क्या जाएगा, NH2 लास्ट में कौन सा आएगा, B. CH3. CH3 मतलब minus. ये जो A माइनस है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और D वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है. मतलब ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, ये बहुत स्लो हो जाएगी. B वाली जो रिएक्शन है बहुत ही स्लो हो जाएगी, नहीं तो टाइम लगेगा. ओके, तो फिर अब ये पहले निकालना पड़ेगा. आपने ये निकाल लिया, मतलब